Dear students, today I am going to explain the first lesson of footprints without feet, which is that a triumph of surgery. I told you the information about the writer and the short theme of the lesson in the previous videos. Today I am going to explain this lesson. First, I have divided the theme of the lesson in points so that you may understand well. The first point of the explanation of this lesson is Tricky's illness. Tricky की बीमारी. The narrator of the story is Mr. Harriet. Mr. Harriet is the narrator of the story, who has narrated this story or who has told this story to all of us, means to all the readers. He is a veterinary surgeon, as I told you in the previous video that he is a vet. VET, vet means पशु चिकित्सक. He was really worried about the dogs. उसे कुत्ते के बारे में वास्तव में चिंता थी. ट्रिकी के बारे में उसे वास्तव में चिंता थी. He was really worried about the dog, which name is Tricky. Its name was Tricky. इसका नाम ट्रिकी था. He was shocked to see it with its mistress. उसे इसकी मालकिन के साथ देखकर झटका लगा. He was shocked when he saw it with its mistress. I am using the pronoun for dog, that is it, but not he. I will tell you why am I using it for dog in the offline classes. He was shocked. Harriet was shocked, sorrowful, astonished. To see it means dog with its mistress, इसकी मालकिन के साथ. And you know better about its mistress. The name of its mistress is Pumphrey. It had become hugely fat. ये काफ़ी मोटा हो गया था. Its eyes had become red. इसकी आँखें लाल हो गई थीं. Its tongue came out from its jaws. और इसकी जो टंग थी, जबान थी, जो जीभ थी, वो जबड़ों के बाहर आ गई थी. The doctor understood well the disease from which it was suffering. It was in a state of disease.
ये बीमारी की अवस्था में था। द सेकेंड heading of this explanation of this lesson, that is, Tricky's mistress made Tricky ill. The mistress of Tricky made Tricky ill. Who made Tricky ill? Its mistress, इसकी मालकिन ने, पम्फ्रे ने ही इसको बीमार बना दिया था। The mistress of dog was Mrs. Pumphrey. Pumphrey was, as you know, Pumphrey was its mistress. This dog was the pet of Mrs. Pumphrey. She told Mr. Harriet that the dog seemed to have no energy. She told me, she informed. To whom? To Harriet, doctor, that the dog means her dog, Tricky. उसका जो कुत्ता था seemed to have no energy. ऐसा दिखता था जैसे उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं थी। उसने हैरियट को बताया कि उसके कुत्ते में कोई ताकत शेष नहीं दिख रही थी। So she gave it more malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks. इसलिए सी गेव, वो इसे देती थी, मोर माल्ट, अत्यधिक माल्ट देती थी, कॉड लीवर ऑयल, कॉड इज अ फिश, उसके लीवर से तेल बनाया जाता है जो फैट को बढ़ाता है, दैट इंक्रीजेज द फैट इन बॉडी। एंड मॉल्ट इज द स्प्राउट ऑफ बार्ले। बार्ले जानते होंगे, जौ को कहते हैं, जौ के स्प्राउट को माल्ट बोलते हैं। माल्ट लिवकर को भी बोलते हैं, माल्ट लिवकर होती है, उससे शराब भी बनाई जाती है। She also gave it some cream cakes. वो उसे क्रीम के केक्स भी देती थी। क्या क्या उसको खाने को देती थी? माल्ट देती थी, कॉड लीवर ऑयल देती थी, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी, एक कटोरा, बाउल मीन्स कटोरा भर के उसको हॉर्लिक्स भी देती थी। She also gave it some क्रीम केक्स भी देती थी, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स भी देती थी। डिस्पाइट हैरियट्स रिफ्यूज़ल, के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हैरियट के मना करने के बाद, रिफ्यूज़ल मीन्स मना करना, ये मना किया था हैरियट ने कि इसको इतना फैटी और ऐसा खाना मत दो, ऐसा फूड मत दो, लेकिन फिर भी वो देती थी, बिकॉज ऑफ हर लव फॉर इट। इट वॉज ए रिच डाइट। रिच डाइट मीन्स ठोस खाना होता है जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कोई भी चीज़ जब कोई ज़्यादा मात्रा में होगी, द थिंग
which we take, if that is in more amount, then that thing will make us sick or ill. वो चीज़ हमें बीमार कर देगी. बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए. वी मस्ट टेक बैलेंस्ड डाइट टू बी फिट इन लाइफ. Now the next point is Harriet's warning to Mrs. Pumphrey. Harriet's की जो वार्निंग थी अर्थात चेतावनी थी पम्फरी के लिए, इसको पम्फ्रे भी कहते हैं और पम्फरी भी कहते हैं. बोथ प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, both pronunciations of this word are correct. Pumphrey and Pumphrey, both are correct. Harriet looked at the dog again. Harriet ने कुत्ते को फिर से देखा. Its big trouble was that it had become greedy. इसका बहुत बड़ी परेशानी ये थी कि इट हैड बिकम ग्रीडी, ये लालची हो गया था. माने लालची होने का मतलब बहुत पेटू हो गया था. ग्रीडी मीन्स पेटू भी होता है. द पर्सन आर द एनिमल हु टेक्स मोर एंड मोर फूड, जो बहुत खाते हैं उनको ग्रीडी बोलते हैं. ग्रीडी लालची को भी कहते हैं. Harriet asked Mrs. Pumphrey or Pumphrey if she had been giving the dog plenty of exercise. Harriet asked Mrs. Pumphrey. Harriet ने मिसेस पम्फ्री को ये बताया या उनसे ये कहा. He informed her that she had been giving the dog plenty of exercise. हैरियट ने मिसेस पम्फ्री से आस्क्ड मीन्स पूछना भी होता है. अब यहाँ पर इफ़ आया है आगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर की क्या का आस्क्ड माने पूछने का सेंस है. यहाँ पर उसने ये पूछा कि क्या. इफ़ मीन्स यदि भी होता है और नैरेटिव सेंटेंस में कि क्या भी होता है. कि क्या वो कुत्ते को काफ़ी व्यायाम करा रही थी, एक्सरसाइज करा रही थी. शी सेड शी हैड नॉट. शी इन्फॉर्म्ड हिम that she had not been giving the dog a plenty of exercise. Then Harriet warned her. तब Harriet ने उसको चेतावनी दी. Harriet gave her warning. If she did not cut its food and gave it more physical exercise, then what will happen? It would be really ill. It was the warning of Harriet. क्या यदि उसने इसके खाने को कम नहीं किया और इसे अधिक शारीरिक व्यायाम नहीं दिया, नहीं कराया, तो वह वास्तव में अधिक बीमार होने जा रहा था. It would be really ill. She said that he was right. उसने भी माना अर्थात she accepted
his advice, and she said that he was right, कि वो ठीक था. Means his advice was right, but it was difficult to her. लेकिन यह कार्य उसके लिए बहुत कठिन था. ट्रिकी को भूखा देखा जाना, to see the tricky hungry, it was very difficult for her. ये बहुत कठिन था उसके लिए. बीमार पड़ गया, ट्रिकी बीमार पड़ गया, ट्रिकी became ill. तो आगे क्या होता है? ट्रिकी टू बी इन हॉस्पिटल, ट्रिकी का अस्पताल में होना. विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कई दिनों में, मिसेस पंफरी टोल्ड हैरियट दैट ट्रिकी डिड नॉट ईट एनीथिंग. मिसेस पंफरी ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया, उसने खाना बंद कर दिया. It stopped eating. It became ill. It refused to eat even its favorite dishes. Dog refused to eat. कुत्ते ने खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपना पसंदीदा खाना जो उसको बड़े चाव से खाता था, उस तक को भी खाना उसने बंद कर दिया. जो फेवरेट डिशेस थी उसकी, उसको भी लेना बंद कर दिया. इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग फैंटिंग. फैंटिंग मीन्स ब्रीथिंग हार्ड, हाँफना. उसने अपना सारा समय भारी भारी सांस लेकर, अर्थात हाँफते हुए और लेटे हुए गुजारा, कुत्ते ने. द नरेटर हैड मेड हिज प्लान इन एडवांस. जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, यू नो बेटर अबाउट हु इज दैट, हैरियट. उसने पहले से ही एक योजना बना रखी थी, अर्थात योजनाएं बना ली थी कि ये बीमार ज़रूर पड़ेगा, तो हमें इसको कैसे ठीक करना होगा. He suggested that Tricky should be hospitalized for about fortnight. Fortnight means 15 days. उसने सजेस्टेड किया था, he gave suggestion to Mrs. पंफ्रे को सजेशन दिया कि ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड. कि उसने ये सुझाव दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए, भर्ती करना चाहिए. द लेडी ऑलमोस्ट बिकेम अनकॉन्शियस. ये सुनकर, हियरिंग दिस, जो महिला थी अर्थात पंफ्रे अर्थात पंफरी थी, मिसेस थी, जो मिस्ट्रेस थी, वो लगभग अनकॉन्शियस हो गई, अर्थात बेहोश सी हो गई. शी वॉज श्योर दैट इट वुड डाई इफ ही डिड नॉट सी इट. उसे ये यकीन था कि यदि वो उसे नहीं देखेगा, मतलब ट्रिकी अगर उसे नहीं देखेगा, अपनी मिस्ट्रेस को नहीं देखेगा, तो क्या होगा? शी वॉज श्योर दैट इट वुड डाई इफ, यदि वह उसे नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा. यहाँ पर ही का मतलब नरेटर से है, डॉक्टर से.
यानी उसका इलाज अगर नहीं करेगा वो तो वो मर जाएगा। लेकिन जो लेडी थी, जैसे ही उसने ये सुना कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 दिन के लिए, तो बिकॉज सी लव्ड इट वेरी मच, इन हर लव फॉर डॉग वाज इंटेंस, बहुत गहरा प्यार था उसके प्रति। उसी बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश सी हो गई। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि यदि उसने इसको नहीं देखा, इसका इलाज नहीं किया, तो ये मर जाएगा। ट्रिकी इन हॉस्पिटल, अब ट्रिकी अस्पताल में पहुंच गया। माने ट्रिकी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट। द नरेटर टुक द डॉग इन हिज कार। नरेटर पीरियड अपनी कार में डॉग को हॉस्पिटल ले आया। पंफरे और पंफरी गेव ट्रिकीज बिलोंगिंग्स। मिसेस पंफरी ने, अर्थात डॉग की मिस्ट्रेस ने, मालकिन ने, गेव मीन्स दिया, उसे दिया, अर्थात किसे, गेव हिम, हीरियट को दिया। और क्या दिया, ट्रिकीज बिलोंगिंग्स, ट्रिकी की बिलोंगिंग्स दी, ट्रिकी से संबंधित वस्तुएं दी। अब वो कौन कौन सी वस्तुएं थीं? लाइक बेड, कसियंस, टॉयज, वेरियस बाउल्स, कोट्स एक्सेट्रा। बिस्तर दिए, तकिए दिए, खिलौने दिए, भिन्न भिन्न कटोरे दिए, कोट दिए आदि। ये सारी बिलोंगिंग्स उसको दी। They sniffed around it and ignored it. When Tricky reached in hospital, जब ट्रिकी हॉस्पिटल में पहुंचा, तो ट्रिकी के साथ दूसरे और कुत्तों का व्यवहार कैसा था? अस्पताल में ट्रिकी ने दूसरे कुत्तों की तरफ देखा। At the hospital, Tricky looked down at other dogs. दूसरे और कुत्तों की तरफ देखा। They sniffed around it and ignored it. उन्होंने इसके चारों तरफ स्निफ किया, अर्थात सूंघा, और इग्नोर किया, अर्थात इसकी उपेक्षा की। ट्रिकीज ट्रीटमेंट, अब ट्रिकी का इलाज कैसे किया राइटर ने? द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर 2 days. लेखक ने, नरेटर ने ट्रिकी पर 2 दिन तक नज़रें रखी। मीन्स पेड मोर अटेंशन ऑन ट्रिकी, ट्रिकी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। He gave it plenty of water but no food. उसने इसे बहुत अधिक पानी दिया लेकिन खाना नहीं दिया। On third day, तीसरे दिन, it started whimpering on seeing other dogs. तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्तों को देखकर आवाज़ें की। It followed them down the garden. यह उनके पीछे बगीचे तक गया। दूसरे और कुत्तों को देखकर इसने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी और उनके पीछे पीछे, इट फॉलोड देम, माने उन कुत्तों के पीछे पीछे बगीचे तक गया। लेटर दैट डे द अदर डॉग्स हैड देयर फूड. उस दिन
उसके बाद दैट डे, उसके बाद वाले दिन में, अदर डॉग्स हैड देयर फूड, माने दूसरे और कुत्ते अपना भोजन ले रहे थे। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने इसे ख़त्म किया था, खाना बंद किया, तो क्या हुआ? ट्रिकी वॉक्ड अराउंड द बाउल्स, तो ट्रिकी कटोरों के चारों तरफ घूमा। उनके जो बाउल्स थे जिसमें उनको खाना दिया गया था, उनके चारों तरफ घूमा। इट मीन्स, इसका मतलब ये था ही वॉज हंग्री, यहाँ ही नहीं होना चाहिए, इट वॉज हंग्री, ये भूखा था। इसका अर्थ था वो भूखा था। हियर ही इज रॉन्ग, इट इज करेक्ट, बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर डॉग एज अ प्रोनाउन। इट वॉज गिवन सम फूड, उसे कुछ खाना दिया गया। ट्रिकी शोज इम्प्रूवमेंट, ट्रिकी ने इम्प्रूवमेंट प्रदर्शित किया, अर्थात उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने शुरू हो गए। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस, ट्रिकी ने प्रोग्रेस शुरू कर दी, अर्थात अपने मीन्स इट्स हेल्थ स्टार्टेड to be improved. Tricky started to show progress. It was given no medical. It was given no medicinal treatment. उसे दवाइयों द्वारा इलाज नहीं दिया गया। मेडिसिनल मीन्स दवाइयों द्वारा इलाज, ट्रीटमेंट माने इलाज। इट रैन अबाउट विद द डॉग्स ऑल डे, ये सारे दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। इट डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग विद अदर डॉग्स, उसने दूसरे कुत्तों के साथ होने की खुशी को खोजने लगा, मतलब वो चाहने लगा कि हम दूसरे और कुत्तों के साथ रहें। मीनवाइल, इसी बीच में मिसेस पम्फ्रे कॉन्टिन्यूड रिंगिंग रेगुलरली, मिसेस पम्फ्री बार बार टेलीफोन करती थी। रिंग मीन्स टेलीफोन करना। She asked various questions about Tricky. वो many questions, various means भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती थी about dog, कुत्ते के बारे में, ट्रिकी के बारे में। But the narrator told her that the dog was out of danger. लेकिन जो नरेटर है उसने बताया कि कुत्ता उसका खतरे से अब बाहर। When Tricky becomes all right, जब ट्रिकी ठीक होने लगा, तो मिसेस पम्फ्रे started to bring round fresh eggs to build up Tricky's strength. फिर वही हुआ, मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी की ताकत को फिर से इम्प्रूव करने के लिए ताज़ा अंडे लाना प्रारंभ कर दिया। द नरेटर बिगेन गिविंग ट्रिकी वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग द मील, और जो नरेटर है ट्रिकी को
खाने से पहले और बीच में शराब देना प्रारंभ कर दिया। Dog began to drink brandy also, और ट्रिकी ने ब्रांडी नाम की शराब पीना प्रारंभ कर दिया। I will not tell you about wine and brandy. It is the culture of the West, and we are pure Hindus. Being a teacher, I should not detail about such things which will injurious to your health. Tricky now had one extra egg in the morning. अब ट्रिकी को अब सुबह एक अतिरिक्त अंडा दिया जाता। इट हैड वाइन एट नून, और दोपहर को वाइन दी जाती, शराब दी जाती, और शाम को ब्रांडी दी जाती। आफ्टर फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, द नरेटर रैंग हर अप सेइंग द डॉग वाज ऑल राइट। नरेटर ने उसे अर्थात उसकी मालकिन को टेलीफोन करके बताया कि हर डॉग वाज ऑल राइट, उसका कुत्ता बिल्कुल सही था। मिसेस पम्फ्रे कम्स टू टेक ट्रिकी होम। मिसेस पम्फ्रे ट्रिको को घर ले जाने के लिए आती हैं। मिसेस पम्फ्रे अराइव्ड एट नरेटर्स सर्जरी इन अ बिग कार। एक बड़ी कार में नरेटर्स की सर्जरी में अर्थात हॉस्पिटल में पहुंची। सी आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, नरेटर से पूछा, इफ़ द डॉग वाज बेटर, क्या उनका कुत्ता बेहतर था। द नरेटर टोल्ड हर दैट डॉग वाज फाइन, और नरेटर ने उनको बताया कि उनका कुत्ता वाज फाइन, बेहतर था, ठीक था। ही वुड ब्रिंग इट टू हर, वो उसे उसके पास ले आएगा। When Tricky saw its my mistress, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, it ran into her Pumphrey's lane, ये दौड़ा, और दौड़कर उसकी गोद में पहुंच गया, चला गया। Lap means गोद। It began licking her face and barking, और इसने अर्थात डॉग ने, कुत्ते ने उसके चेहरे को, अपनी मालकिन के चेहरे को चाटना शुरू कर दिया और भौंकना प्रारंभ कर दिया। ट्रिकीज क्योर, ट्रिकी का इलाज, दैट इज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, यही दैट इज आल्सो द टाइटल ऑफ दिस लेसन। यही सर्जरी की मीन्स, यही इलाज की विजय थी। सर्जरी का मतलब केवल चीड़-फाड़ नहीं होता है, सर्जरी का मतलब इलाज करना भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है सर्जरी के लिए। द नरेटर हेल्प्ड द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट ट्रिकीज वेरियस थिंग्स।
द नरेटर हेल्प्ड नरेटर ने ड्राइवर की ट्रिकी की कई वस्तुओं को लाने के लिए सहायता की। दीज वर ट्रिकीज बेड्स, जो ले गए थे ये ट्रिकी के बिस्तर थे, टॉयज थे, कशियंस थी, कोट्स थे, बाउल्स थे। दे हैड नॉट बीन यूज्ड, इनका प्रयोग ही नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चल पड़ी, तो क्या हुआ, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पम्फ्रे खिड़की से बाहर झांकी। लीन आउट मीन्स झांकना। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। शी टोल्ड द नरेटर, उसने नरेटर से बताया, क्या बताया, इट वॉज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि ये सर्जरी की विजय थी। This was the explanation of this lesson. I will send you the question and answer of this lesson.